मैं एक बारी जर्मनी गया एंड मैंने जर्मन नहीं आती पर मैं उत्थे जाके बड़े फर्स्ट क्लास एक हफ्ता लगा के आया. What is important is we read between the lines. So this can happen to any person anywhere. For business, I'm sure, as Mr. Kular just said, he went to China. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਬਟ ਉਹ ਕੁਝ ਵਰਡ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਨ ਲਾਈਫ you will face lots of situations when we won't understand the language. So try to get as much as possible out of, even it doesn't make sense, because there will be words, there will be expressions which will make sense. Now coming to the basic point, the point of discussion today is what are the winning ideas. As has been rightly said by different people in the panel, there cannot be one idea. Okay, there can be one business you are in, there can be one USP, there can be one strong reason. For example, if you are in manufacturing of, say, radiators, you are in manufacturing of cloth. Yes, but within that business, every day is a new day. Every day is a challenge. And as I'll just try to summarize what Sandeep Bright was also saying, every day she enjoys her work. I enjoy, you enjoy. The question is, if you are not enjoying your work, if you are not enjoying what you are doing, there is something lacking. There is some gap. There are two ways to look at it. One, as an entrepreneur, it's my business, my thing. If the people working for you feel the same way, it is their thing, their ownership. That sense of belongingness in a business, not only of the business owner, but of the employees, is one of the important things. Not just employees, I would say your stakeholders, which is a very broad term. Stakeholders can include your vendors if you are a manufacturing firm. Stakeholders can include your customers. A lot of areas can be included. One fundamental thing about business, despite a hostile environment of business, I must salute the Ludhiana industry, people like you who are sitting in front of me, who have braved all odds and proved that the spirit of entrepreneurship has succeeded and has defied all odds. One of the basic things which any entrepreneur will do or should do, or the way it should be in textbook, three basic qualities or three basic things which everyone involves is trust. You need to gain trust of your consumers, your people working for you, and your employees. What Mrs. Bector said initially, I completely agree with her, that if you are not paying your taxes, if you are cheating your government, your people will cheat you. अगर आप बिल नहीं ले रहे हो तो आप सामान कच्चे में खरीद रहे हो. कच्चे में खरीद रहे हो यानी कि आप अपनी बुक्स में इन्वेंट्री नहीं मेंटेन कर पाओगे. आप बुक्स में इन्वेंट्री नहीं मेंटेन की, आपने मान लो वो 500 आइटम्स परचेज की, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है क्योंकि आपने तो चोरी बिल नहीं लिया था, आपकी गेट पे एंट्री नहीं हुई, आपके स्टॉक में एंटर नहीं हुआ. अब आपके स्टाफ को पता है कि सर इसका तो काउंट नहीं है, वो साफ कर देना. सो आपने तो गवर्नमेंट के 14.3% टैक्स बचा लिया, लेकिन आपका भी तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया. सो ट्रस्ट ऑफ your businessmen, your employees, your stakeholders on you is one very important thing. Second is values, which goes along with trust. आपके वैल्यू सिस्टम्स में जो बातें बहुत बेसिक एक हर ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए, हर एक इंसान में, दी वैल्यू सिस्टम ऑफ इंटीग्रिटी. हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कभी झूठ नहीं बोलना, और खुद ही फ़ोन पे पापा घर पे नहीं है. एक एग्जाम्पल तो काफ़ी कॉमन हो चुका है. सो लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप फॉरेन में देखें, विदेश में देखें, वहाँ के बच्चे हमारे बच्चों से बहुत कम झूठ बोलते हैं. यहाँ पे शायद हमने उनको वो संस्कार नहीं दिए या आजकल मिस कर गए. हमारे से कुछ साल पहले तक ये बहुत अच्छे एग्जिस्ट करते थे, लेकिन बिजनेस में एज अ बिजनेस ओनर, एज अ बिजनेस लीडर,
आपके ऊपर ट्रस्ट और वैल्यूज़ सिस्टम्स जो आप अपने लिए क्रिएट करोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करोगे, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट। बाय द वे, यहाँ पे सिंह साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था कि लिमिटेड कंपनी और प्रोवाइडर में क्या फ़र्क रहता है। जनरली फ़र्क यहाँ से शुरू होते हैं, हमारी जो वैल्यू सिस्टम्स हम इंग्रेज करते हैं, भले ही वो कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, भले ही वो लिमिटेड है, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਫॉर मी टू मूव टू बीइंग अ लिमिटेड कंपनी। सम कंपनीज बिगिन ओके लिमिटेड, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। एंड thirdly, the third point which I wanted to stress was systems। हम सिस्टम खुद ही बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं। ये हमारी एक ह्यूमन नेचर, पंजाबी नेचर या इंडियन नेचर है कि सिस्टम बनने से पहले हम सिस्टम का तोड़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। सिस्टम अगर बोलता है कि रेड लाइट पे रुकना है और कोई ट्रैफिक वाला नहीं देख रहा, हम जंप करते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। सिस्टम में बहुत ज़रूरी है कि हम सिस्टम को पहले डिफ़ाइन करें। एक एग्जांपल सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शायद आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। मेरे से बहुत बड़े और बहुत एक्सपीरियंस्ड सज्जन साहब बैठे हैं। मैं किसी को ज्ञान देता तो नहीं अच्छा लगता, बट क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करना है तो मैं कुछ बातें शेयर करूँगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में एक बड़ी सिंपल टर्म की जाती है, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस। क्या हर चीज़ की एक जगह डिफाइन हो कि यहाँ पे एक्स चीज़ आनी है, और हर बारी वो एक्स चीज़ आएगी तो वो अपनी ही जगह पे जाएगी। इस तरह के कई सिस्टम्स एंट्री के, एग्ज़िट के, पॉलिसीज़ के ये बनने चाहिए। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच विल टेक अ बिजनेस फ्रॉम लेवल ए टू लेवल A++। इसके अलावा जितनी भी बातें अभी सबने शेयर की हैं, मैं दोबारा तो नहीं दोहराऊँगा, बट आई विल एग्री विद एवरीथिंग यू शेयर। विनिंग आइडियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी होती हैं, कब, कहाँ, कैसे, कौन सी अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा खटखटाए। भले ही वो किसी ने चाय के लिए रोक लिया और आपको लगा कि हाँ यार अब मेरे को मौका मिल गया है अपनी बात कहने का। ऑफ कोर्स देयर कैन नॉट बी वन टेक्स्ट बुक विच टेल्स ओके ये चीज़ करो। उसमें शायद ये वाला एग्जाम्पल कभी भी नहीं आएगा जो सर ने शेयर किया था।